جی ہبا، نشریات کا سلسلہ آگے بڑھائیں. میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے ہم نشریات کو آگے بڑھائیں. ہمارے ساتھ ایک بہت اچھے مہمان موجود ہیں. ان کا تعارف کرانا چاہتی ہوں. وہ ایک ایسی آواز ہیں جو اپنی پوڈ کاسٹ، اپنی ہوسٹنگ کے ذریعے عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں. ہر ایشو پر بات کرتے ہیں، سوشل ایشوز پر. انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ہوتا ہے ان کا یہ پوڈ کاسٹ. کرنٹ افیئرس پہ بھی بات کرتے ہیں، پر جب بھی بات کرتے ہیں ان کی بات وائرل ہو جاتی ہے. تو ویلکم کرتے ہیں عدنان فیصل صاحب کو. السلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمدید. سمی بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک کیسے ہیں آپ؟ سو گڈ ٹو ہیو یو. السلام علیکم. فائنلی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. رمضان کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ رمضان بہت اچھا جا رہا ہے، اور رمضان ٹرانسمیشنز بھی چل رہی ہیں، ہماری بھی چل رہی ہیں، پوڈ کاسٹ بھی ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. جس طریقے سے یہاں پہ جو وائب فیل ہوئی پوری ٹیم میں انرجی فیل ہوئی ہے، امیزنگ. تھینک یو سو مچ. Thank you. آپ خود بھی چونکہ ماشاءاللہ بہت مصروف رہتے ہیں، وقت نکال کے اگر ہماری ٹرانسمیشن دیکھیے تو آپ کا فیڈ بیک میٹر کرتا ہے، بیکاز آپ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو سچ ہوتا ہے بس وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایکچولی بہت سارے دوست آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کہہ دیتے ہیں. اس میں ہوتا ہے انسان کو سچ یہ کہہ دینا چاہیے. دیکھیں، جو اچھا کام کر رہا ہو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ لوگ بھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن ٹرانسمیشن کے اندر آپ لوگوں کی نظر آ رہا ہے کہ یار تھوڑی تحمل مزاجی ہے. اور اگین یہ بھی ہے کہ تمیز سے بغیر وائرل کرنے کی کوشش سے کانٹینٹ نکالا جا رہا ہے. یہ کمال ہے. بالکل بالکل. وہی ہمارے ڈائریکٹر سہیل زیدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ٹرانسمیشن یہ محفل لگائی گئی ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے. وائرل تو پھر ساری زندگی بہت کانٹینٹ ہوگا ہونے کے لیے. عزت اللہ دینے والا ہے، کسی بھی طریقے سے مل جاتی ہے آپ. بے شک ایسا ہی ہے، ایسا ہی. جی اچھا یہ جو سیگمنٹ ہے میں بتاتا ہوں، ہبا کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے، اور اب یہ آپ کو بتائیں گے سیگمنٹ میں کیا ہوگا، کون کون. آپ پلیز آپ لیڈ کریں ہبا. جی عدنان فیصل صاحب یہ میرا فیوریٹ اس لیے ہے کیونکہ مجھے اس میں ایک عدد شعر پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور ججز جو ہیں وہ بہت ساری ہماری غلطیوں کے باوجود بھی ہمیں جانے دیتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے معزز ججز کا انٹروڈکشن آپ سے کروانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ سیف الرحمان جعفر صاحب موجود ہیں، نور الہرا صاحبہ موجود ہیں، اور میرے بہت اچھے بھائی طلحہ عالم صاحب موجود ہیں. اچھا، پارٹیسپینٹس بھی ہمارے پاس یہاں 2 ہوتے ہیں. میں چاہتی ہوں ان کا بھی انٹروڈکشن ہاتھ کے ہاتھ کرا دیا جائے. عبد الرافع ہیں ہمارے پاس بحریہ یونیورسٹی کراچی سے. علی عباس ہیں پنجاب یونیورسٹی گجرانوالہ سے. بٹ ادھن آج کے پارٹیسپینٹس جو ہیں اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. میں چاہوں گی طلحہ بھائی پلیز بتائیں اس بارے میں کہ وائلڈ کارڈ انٹریز ہیں، ونر ری اپیئر ہو رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ نور آپ پلیز بتائیے گا. نور جی، ہم اپنے پارٹیسپینٹس کو فلٹر در فلٹر کر رہے ہیں. اچھا، جو ٹیم اے کے پارٹیسپینٹ ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا ایک ہمارا مقابلہ بہت بلو ایوریج گیا تھا، اور ہم نے کہا تھا دونوں ٹیمز میں ہی بہت مائنر سے فرق سے ہم نے کوالیفائی کیا تھا. دوسری طرف جو ٹیم بی ہیں وہ فرسٹ راؤنڈ جو ہمارا پہلا رمضان کو تھا تب یہ ناک آؤٹ ہوئے تھے. لیکن جب ہم نے ان کے مارکس کو دیکھا تو دونوں کے نمبر برابر تھے، تو ہم نے سوچا اس سے پہلے کہ ہم اپنے کوارٹر فائنلز پہ پڑھیں ان کا آپس میں مقابلہ کروایا جائے تاکہ جو ان میں سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے وہ اگلے مقابلے میں جا سکے. صحیح، اور بہتر سے بہترین ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے. جی عدنان، تو شعر و شاعری سے آپ کو کوئی شوق؟ کوئی خاص ویسے زیادہ نہیں ہے. ایک زمانے میں ہوتا تھا جب کالج یونیورسٹی میں ہوتے تھے، مضمون لکھنے ہوتے تھے، وہ شاعرانہ قسم کی، وہ جو عاشقانہ قسم کی شاعری ہوتی تھی اس سے ہوتا تھا. لیکن آج رمضان ٹرانسمیشن ہے تو آج مجھے لگتا ہے کہ ان 30 روزوں میں ہم کچھ تو سیکھ ہی جائیں گے. ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ججز کے سامنے گستاخی کرنے والی ہوں میں کہ تم نے اجلت سی دکھائی ہے مجھے کھونے میں، تم نے اجلت سی دکھائی ہے مجھے کھونے میں، فالتو شے تھی پڑی رہتی کسی کونے میں، ایسے دکھ سکھ کے تعلق سے اکیلی اچھی، ساتھ ہنسنے میں نبھایا میرا نہ رونے میں. واہ. اچھا جی، جرار حیدر نقوی صاحب کے اشعار ہیں. گلاب مر رہے ہیں اس کے ہاتھ پر بنے ہوئے، گلاب مر رہے ہیں اس کے ہاتھ پر بنے ہوئے، مہک لہو کی آ رہی ہے مہندیوں کے تھال سے، بتاؤ ایک ہیر کو جو پڑ رہی ہے میر کو، رہی ہے میری دوستی بھی ثروت و جمال سے. واہ واہ واہ. میرے خیال میں بھی پھر بنی گیا ہے تو میں نے بھی سوچا میں فون کھول لوں. ہمارے گروپ سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ارشاد. میں بھی جو یہ ان لوگوں کے لیے جو روزہ یوزلی رکھتے ہیں لیکن وہ روزہ نہیں فاقہ ہوتا ہے، روزے کی طرح روزہ نہیں ہوتا. دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. واہ واہ. جی ججز شروع کیا جائے. جی، جمال احسانی کے اشعار ہیں.
जिसे भी हो अदब आदाब देख सकता है, कोई भी शख्स तेरे ख्वाब देख सकता है, क्या बात, ना चाहता है कि हम हालते सुकून में रहें, ना अपने इश्क में बेताब देख सकता है, और जमाल जिसको भी शक हो हमारी बातों पर, हमारा हल्का या अहबाब देख सकता है। क्या बात है जी। जान देने की घड़ी थी और मैं जिंदा रहा, आज उसकी रुखसती थी और मैं जिंदा रहा, क्या बात है, अब कहीं पर डूब मरने की भी गुंजाइश नहीं, उसकी आंखों में नमी थी और मैं जिंदा रहा, जिनकी गर्दन झुक गई थी वो तो कब के मर गए, मेरी गर्दन कट गई थी और मैं जिंदा रहा। वाह 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 वाह। सबको मेरे फैसले की दाद देनी चाहिए, बिल्कुल। सबको मेरे हौसले की दाद देनी चाहिए, इतनी जालिम जिंदगी थी और मैं जिंदा रहा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, एक से बढ़कर एक। आज खादिम ने फैसला किया है कि अपने अशार पढ़े। जी 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 जी, इरशाद इरशाद। इरशाद। घाव आसानी से कब अपना निशान छोड़ता है, जिस्म जब थक के गिरे रूह की जान छोड़ता है, वो मोहब्बत है मेरी मुझसे नहीं हो सकता, फैसला उस पे है जिस वक्त जहां छोड़ता है, वाह वाह वाह। उससे कह दो कि तमाचे का तकल्लुफ ना करे, क्या बात है, उसका हर लफ्ज मेरे मुंह पे निशान छोड़ता है, छोड़ता ये वही है, याद आ गई ये पुराने दौर याद दिला पुराना दौर याद आ गया ना। ये सिटी में हम आगाज करेंगे। ये जो तकरार है हमारे बीच, आखिरी बार है हमारे बीच, साल में एक दो मुलाकातें, किस कदर प्यार है हमारे बीच। चूम कर खाके दरे यार कदम धरता हूँ, जस्त भरता हूँ अबद पार कदम धरता हूँ, बर जमीने दिले हर सर कशो दिल कश बदने, सिर्फ मैं हूँ जो लगातार कदम धरता हूँ। नहीं है मुनहसिर इस बात पर यारी हमारी, कि तू करता रहे नाहक तरफदारी हमारी, मगर अच्छा तो ये होता कि हम एक साथ रहते, भरी रहती तेरे कपड़ों से अलमारी हमारी। हमारी ये जजीद जुल्म सितम तख्त ताज बैत फौज, हुसैन सब रिजा करबला नमाज और इश्क, कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे। यूं ना उम्मीद न कर आखिरी तवक्को से, कि तुझको देख रहे हैं बड़ी तवक्को से, वो अपने होने को साबित जरूर करता है, पुकारता है उसे जब कोई तवक्को से। ये यूं ही बेयकीन यूं ही बेनिशां मेरी आधी उम्र गुजर गई, कहीं हो न जाऊं मैं राएगा मेरी आधी उम्र गुजर गई। अभी वक्त कुछ मेरे पास है ये खबर नहीं है कयास है, कोई कर गिला मेरे बदगुमा मेरी आधी उम्र गुजर गई। ये इश्क अपने तवक्कुल में आसमान सा है, शेरो शायरी करता है। ये इश्क अपने तवक्कुल में आसमान सा है, किसी सतू का सहारा नजर नहीं आता, जहां जबीनों पे शिकने दिखाई देने लगे, मैं उस जगह पे दोबारा नजर नहीं आता। इसमें कैसी शद्दुमद, लम यलिद वलम यूलद, इब्तिदा न कोई हद, लम यलिद वलम यूलद। क्या कहूँ कहाँ तक है, तू नहीं से हाँ तक है, क्या कबूल हो क्या रद्द, लम यलिद वलम यूलद। दाल जी दोस्त कुछ और भी हैं तेरे सिवा, सबका 5 4 3 दोस्त कुछ और 1 पॉइंट आ गया। दाल से आप सुनाए जी। दिल फिर तवाफे कुए मलामत को जाए, पिंदार का सनम कदा वीरा किए हुए, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से, बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। ये इंतज़ार हमें देखकर बनाया गया, ज़हूरे हिज्र से पहले की बात है हम लोग गाफ। गुफ्तगू अच्छी लगी ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों बाद कोई हम सफ़र अच्छा लगा। आंख अश्क बहाने पे है मामूर मिनल इश्क, और होंठ हैं चुप रहने पे मजबूर मिनल इश्क। इश्क का 5 5
4 3 2 1 वक्त खत्म। पॉइंट आ गया, काफी जी आप सुनाएं। अगला। कासिदे शहरे दिल ने मेरे खैमाए ख्वाब में आके मुझसे कहा जाग जा, बादशाहे जनूने तुझे आज से लश्करे अहले गम की कमा सौंप दी। कमास एहतियाते नज़र और वज़े खिरत के तकाज़ों की तफसील रहने ही दे, ये मुझे भी खबर है कि मैंने तुझे अपनी वारफ्तगी रायगां सौंप दी। वक्त खत्म हो चुका है और इससे पहले कि जज साहिबान फैसला करें कि कौन आज का विनर है, मैं चाहूँगा आज के इनामात, आज के नहीं बल्कि जो मुकाबला चल रहा है ये रमज़ान के एंड तक जाएगा और जो फिनाले में जीतेगा ना उसके ढेर सारे इनामात हैं, वो मैं शेयर करना चाहूँगा नाज़रीन के साथ। सबसे पहले जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों से के अरकियात से तैयार करते हैं, इनकी तरफ से विनर के लिए मोटरसाइकिल है, रनर अप के लिए एलईडी टीवी। नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का, नेल्सन पेंट की खुसूसियत, ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है जिससे आप कम पेंट के मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। इनकी तरफ से विनर के लिए एक अदद मोटर बाइक और रनर अप के लिए एक अदद वॉशिंग मशीन। मल्टीनेट एलईडी, डॉल्बी ऑडियो और स्मार्ट एंड्रॉयड सिस्टम के जरिए तेज़ रफ्तार परफॉर्मेंस और मुकम्मल एंटरटेनमेंट कंट्रोल। इनकी तरफ से विनर के लिए और रनर अप दोनों के लिए एलईडीज़ हैं। और फूड पापा जो कि हमारे हर सेगमेंट के फिनाले के विनर को एक अदद मोटरसाइकिल दे रहा है। और फूड पापा सबसे पहला ऑर्डर करने पर पाएं 70% डिस्काउंट। सहर इफ्तार में रेस्टोरेंट से हर ऑर्डर पर मिलेगा आपको 40% डिस्काउंट। सुकून से होगा हर घर पुरसुकून। जी हिबा, जज साहबान की तरफ पहले अदनान से भी जानना चाहता हूँ कैसा लगा मुकाबला? एक्सीलेंट यार, मजा आ गया। अच्छा, ये इट्स लाइक अंताक्षरी बट इट्स लाइक शेर और शायरी के अच्छा, हमने हिसाब गानों वाली अंताक्षरी तो की थी, ये लेकिन आज शेर और शायरी की अंताक्षरी बड़ी शेर और कमाल शायरी की वाली। आखिरी लफ्ज के हर्फ से। स्पॉन्टेनियस उसी वक्त लाइव ये ना जी, ऐसा आपको कितनी कलेक्शन चाहिए शेरों की, और किसके सामने भी लोग बैठे हुए हैं, कितनी ज्यादा आपके पास मामलात होंगे कि आप ऐसे एकदम से ही, शुरू ऐसे ही, होंगे। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। ही। और कोई गलती की जो है वो गुंजाइश नहीं है। जजेस से आप सुनेंगे किस तरह से ये चीजें को देखते हैं, इनको कैसे आज मिस तो पकड़ते हैं, दोनों से एक एक कहाँ-कहाँ। पॉइंट हुए हैं। हाँ जी। गलती तो एक एक मुझे नजर आई है दोनों की। जी, जो गलती आपको नजर आई उसके अलावा अशार बेवज़न भी हुए। अच्छा। गालिब का इतना मारूफ शेर आपने बेवज़न किया, दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा वीरां किए हुए। इसके अलावा शेर था मुद्दतों बाद कोई हम सफ़र अच्छा लगा, ये भी आपने बेवज़न किया। और तलफ़ुज़ की भी गलतियाँ दोनों टीम्स में देखी गई। सो हम तीनों जजेस ये मुत्तफ़िका तौर पर चाह रहे हैं कि अल्फाज की तरफ जाया जाए ताकि फैसला जो है वाज़े हो। ठीक है, वक्त की किल्लत की वजह से हम जल्दी से जाना चाहेंगे अल्फाज की तरफ। जी, दो लफ्ज़। जी जी, जी बिल्कुल। ठीक। टीम ए आपके लिए पहला लफ्ज़ है हालत। हालत। हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। टीम बी के लिए पहला लफ्ज है रंज। रंज। 5 4 3 2 रंजिश रंजिश 1 1 रंजिश is another word and रंज। यस रंजिश। अच्छा, रंज की जगह रंजिश नहीं यूज हो सकता है। ठीक है, लफ्ज़ दें। सैफ आप दे दीजिए। टीम ए आपका लफ्ज़ है सहरा। 5 सहरा निकाल दूं कभी दरिया निकाल दूं, 4 दश्त तो दश्त हैं सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए शेर घोड़े। गलत है। सर दश्त तो दश्त है। ठीक है, ये ठीक। ज़ीरो हो गया आप। ये भी गलत हुआ ना पॉइंट। माइनस, हाँ जी, गलत। आप जी टीम बी से एक आपके लिए लफ्ज है छत। छत। 5 4 3 2 ठीक है, 1 माइनस आ गया हमारे पास। ठीक जी है। काफी आप पैसे तक पहुंच चुके हैं। हाँ जी, फैसले तक आई थिंक पहुंच- परफॉर्मेंस की बुनियाद पे भी किया जा सकता है। कौन से आपको शेर जिनके अशार अच्छे लगे? अच्छा, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नताइज मुख्तलिफ थे, लेकिन चूंकि दोनों माइनस में थे, ठीक है, दोनों एक एक शेर नहीं सुना सके थे, तो हमने ये फैसला किया कि हम इसे बिल्कुल क्रिस्टल करके अल्फाज पर चले अल्फाज जाएं। पे जाएं। तो अल्फाज पर हमारे सामने नतीजा आ गया। टीम ए आज की फातेह है। टीम बी अशार सुना ही नहीं सकी, टीम ए ने फिर भी एक शेर टीम सुना। ए। ठीक है समीर। तो माशाल्लाह ये क्वालिफाई करके अगले राउंड के लिए। हाँ जी। और आपने दिल छोटा नहीं करना, आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। आपके साथ मरहबा गुलबहार, नेल्सन पेंट्स और सुकून की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ भी जाएंगे। और ऑल द बेस्ट टू यू। आगे मुकाबला और सख्त होने वाला है। हाँ जी, इसे बहुत मजीद तैयारी की जरूरत है। बहुत तैयारी की ज़रूरत है।
अदनान फैसल साहब, हमारे पास ये होता है कि जजेस हमारे इस कदर गौर करते हैं पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस पे कि अगर उन्हें लगता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री कोई हम डाल सकते हैं तो वो भी डाली जाती है, एक सेकंड चांस भी दिया जाता है। रीअपेयर हुए हैं पार्टिसिपेंट्स आज और वो बदकिस्मती है, ठीक है, तैयारी में जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है कि आप हो सकता है वो जजेस का वो फैसला है, हो सकता है वो दे दें। गलती हो, आपको मुकाबला अर्जुन को मौका दिया जाता है कि फिर आए तैयारी के साथ और बेहतर परफॉर्म करके। अरे वाह भाई, एक्सीलेंट। अच्छा, वैसे अगर हम ये बैतबाजी का कंपटीशन करते तो हमें तो 2 के बाद हम तो खत्म नहीं, हम तो बिल्कुल ही है ना, ऐसे 2 हमारा यहाँ कोई हम लिखे बगैर हमारा ही कर सकते हैं, हमने पूछ निकाल के किए मामला। हाँ, 1-2 के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन अदनान, उनसे हमने बात की, कितनी वोकैबुलरी चाहिए होती है एक मुकाबले के लिए वैसे अंदाजा? खुदा, कमो बेश अल्फाज का ज़ख़ीरा तो खैर बहुत चाहिए होता है, अशार का भी ज़ख़ीरा हमें 1000+ हो तो आप यहाँ आए। हम तो उर्दू या भी सही से नहीं बोलते हैं, हम कहाँ पहुँचेंगे? अंदर से इंसान शायराना होना चाहिए। शायर जो है ना वो पैदा होते हैं। आप अगर बनना चाहेंगे ना कि मैं शायर बन जाऊं तो ये बहुत मुश्किल काम है। अदाकार भी पैदा ही होते हैं, होस्ट भी पैदा ही होते हैं, नेचुरल टैलेंट के बारे में, एक्टर भी पैदा चाहे ही वो होते हैं। स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो पेंटर्स हो, चाहे वो शायर हो, बचपन से ही चाहे पैदा वो होता है। एक्टर्स हो, होस्ट हो, कुछ भी हो, टैलेंट आपके अंदर होता है या नहीं होता, पैदा नहीं कर सकते आप, सिर्फ उसे प्रैक्टिस से पॉलिश कर सकते हैं अगर हो तो। हकीकत है, बिल्कुल ऐसे ही है ना।